Okay. So what have we covered so far? Sets हो गया अपना, isn't it? Okay. So sets के बाद relations. ठीक है. So basically क्या है? Sets, relations and functions. है ना. तो ये sets के बाद relation, relation के बाद function. जैसे कि relations करने के लिए we need concept of sets. और फंक्शंस करने के लिए अपने को रिलेशंस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है ना. सो ये सारे ऑर्डर में है. करेक्ट. अच्छा. और सेट्स और रिलेशन जो है दे बिलोंग टू अलजेब्रा और फंक्शंस बिलोंग्स टू कैलकुलस, है ना. सो दीस चैप्टर्स आर लाइक ब्रिज बिटवीन अलजेब्रा एंड कैलकुलस. ठीक है. सो ऑब्वियसली वी गोना स्टार्ट रिलेशंस टुडे, राइट. अच्छा. तो ना रिलेशंस करने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सेट्स और रिलेशंस को लिंक करता है, which is basically Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. Cartesian is a word which we have come across in 9th and 10th standard, isn't it? Cartesian product of two sets. Right. So Cartesian product of two sets. So say for example there are two sets, capital A and capital B, right? And of course if you're talking about two sets, usually they have to be non-empty. अगर वो already empty है तो फिर उस पर डिस्कस करके क्या फायदा, right? So इसलिए it should be two non-empty sets, right? अच्छा, first thing. So how is Cartesian product defined as? Let's see. So the two sets are A and B. Then Cartesian product is defined as A cross B, right? And it is basically set of all ordered pairs. Set of all ordered pairs A comma B. Set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to first set and B belongs to second set. Very simple definition, isn't it? अच्छा, we do know about ordered pairs, don't we? Again, ordered pairs कहाँ यूज किया था हमने? ज्योमेट्री में यूज किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, isn't it? जैसे कि this represents x and this represents y, isn't it? तो अपन ना यहाँ x y b ले सकते थे, right? Where x belongs to A and y belongs to B, है ना? We could have considered that as well, है ना? We could have written x comma y. It doesn't matter. Okay, so all ordered pairs A comma B such that A belongs to first set and B belongs to second set. तो क्या लिखते हैं आपको? Cartesian product of two sets is defined as every ordered pair is defined as every ordered pair A comma B, है ना? A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, and is denoted by A cross B, and is denoted by A cross B. It's not A into B. We pronounce it as A cross B, right? So let's consider a very simple example, है ना? To quickly understand an example. जैसे कि सेट A है से 1 2 3 and से सेट B है से A comma B, right? So set B is A comma B, right? अच्छा, तो we need to find all ordered pairs possible, है ना? अच्छा, so let's see A cross B. जैसे कि से फॉर एग्जांपल अपन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट फिक्स करेंगे, जैसे कि एंड रिमेंबर फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम व्हिच सेट? फर्स्ट सेट, इजंट इट? A belongs to the first set and the second element belongs to second set, right? अच्छा, तो पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करूंगा which is obviously 1 comma A. अच्छा, सेकंड ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है? 1 comma B. कैन यू सी दैट? अच्छा, अब देखो 1 के सारे ऑर्डर पेयर्स हो गए, इसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे 2 के, तो 2 comma A
और द नेक्स्ट वन विल बी 2 comma b, isn't it? अच्छा, अभी 2 वाले हो गए. Now comes 3 comma a and 3 comma b, isn't it? Okay, so this is basically your A cross B. This is your A cross B. Okay, very simple, isn't it? कुछ भी नहीं basically. अच्छा, now okay, is there a way to find number of ordered pairs? अच्छा, how many ordered pairs do we have here? 1 2 3 4 5 6. अच्छा, how many elements in set A? 3. How many elements in set B? 2. Can you say that? Correct. Number of n of A into n of B. माने if you consider n of A as m, n of B as n, then the number of elements in A cross B will be mn. Right? अच्छा. Okay. So let's write a note kind of thing. Or 0.1 or something. Right? So if n of A is equal to m and n of B is equal to n, then n of A cross B is equal to n. Right? N of A cross B is equal to n. अच्छा, so ये हो गया A cross B. So can't we also define B cross A? अगर आपने डिफाइन किया B क्रॉस है, उसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है इट विल बिलोंग टू विच सेट? B, एंड सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट A, isn't it? अच्छा, तो ना within the same example let's also find B cross A, है ना? Let's also find B cross A and we try to compare them. अच्छा, तो B क्रॉस A में फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा? A, 1. अच्छा, सेकेंड ऑर्डर पे A, 2. थर्ड ऑर्डर पे A, 3. ओके, फोर्थ ऑर्डर पे B, 1. नेक्स्ट B, 2 एंड B, 3. अच्छा, ओके. नाउ अच्छा, how many elements were there in B cross A? 6. I mean it's pretty obvious, isn't it? क्योंकि अपन मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, so mn या nm दोनों एक ही है. Right? So clearly we could say that therefore number of elements in A cross B is obviously same as number of elements in B cross A. Point number 1. And point number 2 ये है कि वो दोनों इक्वल है क्या? Are they equal? Are they equal? Now we need to understand are they equal का मतलब किसी ordered pair में, जैसे कि अगर मैंने बोला 0.1, 2 एक पॉइंट है 1, 2, you know where it lies on xy plane, है ना? अपन जानते हैं कार्टेशियन प्लेन में वो कहाँ लाई करता है अपन जानते हैं, x का 1 y का 2, है ना? अच्छा, 2, 1 y का 2, सॉरी x का 2 और y का 1. अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही पोजीशन पे होंगे क्या? नहीं, वो दोनों अलग अलग है ना? सो ऑर्डर्ड पेयर में यू सी नाम में तो है ऑर्डर्ड पेयर, माने ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, माने वो दोनों सेट जरूर इक्विवेलेंट तो है, लेकिन आर दे इक्वल? रिमेंबर, दो सेट्स इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए. अच्छा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है? अब देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, इस सेट में एलिमेंट्स देमसेल्व्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स, माने ये सेट का एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, राइट? अच्छा, सो इसका पहला एलिमेंट है 1, 8 और इसका पहला एलिमेंट है A, 1. Are they same? No. उसका मतलब A cross B is definitely not equal to B cross B. In general, we should probably be writing. When I written in general, उसका मतलब कुछ specific cases होंगे where A cross B is same as B cross A. Can you guess? When would that be possible? Very good. अगर दोनों सेट्स इक्वल हैं, जैसे कि 1, 2, 1, 2,
देखो 1 1 1 2 1 2 2 ऐसे 4 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अच्छा अगर आपने b क्रॉस a फाइंड किया तो भी वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इजंट? अच्छा तो इसमें एक्सेप्शनल केस कौन है कि आल्सो वी नीड टू नो दिस कि इफ a is equal to b that implies a cross b is actually same as b cross a। जस्ट अ पॉइंट, वैसे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। राइट, इजी। ओके ठीक है, एक ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, बस हमको बस पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर माने दो एलिमेंट्स, where first element comes from first set, second element comes from second set, simple। अच्छा उसमें ना and we need to consider all such ordered pairs, all such, है ना। अच्छा now अब देखो रिवर्स काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ना he would probably give us a cross b के some ordered pairs, है ना। तो क्वेश्चन यही होगा, दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको फाइंड करना होगा सेट A और आपको फाइंड करना होगा सेट B। we'll have to find set A and set B, right, where a subset of A cross B is, where a subset of A cross B is say A comma 1, A comma 2, B comma 3 and C comma 3। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड आपको ये भी लिखना है एंड n of A cross B is 6। sorry, n of A cross B is 9, n of A cross B is 9। so क्या क्वेश्चन है, कैसा दर्शन? so A cross B में 9 एलिमेंट्स होना चाहिए, है ना, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राइट। एंड मोरओवर A cross B का एक सबसेट दिया हुआ है, वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ A cross B इज गिवन टू अस, है ना। अच्छा तो आपको क्या फाइंड करना है, सेट A और सेट B एज वेल एज द मिसिंग एलिमेंट्स इन A cross B। आपको ये भी फाइंड करना है, आल्सो फाइंड मिसिंग ordered pairs, also find missing ordered pairs of A cross B। अच्छा क्वेश्चन है, and at the same time very simple। आगे आंसर, राइट। so isn't it pretty obvious कि अगर A cross B में 9 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली दो ही केसेस बनेंगे या तीन केसेस, सेट A में 1 एलिमेंट, सेट B में 9 एलिमेंट्स, सेट A में 9 एलिमेंट, सेट B में 1 एलिमेंट, या सेट A में 3, सेट B में 3। you could see कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स में, लुक एट द फर्स्ट एलिमेंट्स, व्हाट आर द फर्स्ट एलिमेंट्स हियर? A तो दो बार रिपीट हुआ है तो ठीक है, एक ही बार कंसीडर करते हैं अपन सेट में, और B है और C है, तो इट्स प्रीटी क्लियर कि ऑलरेडी A में 3 एलिमेंट्स है, उसका मतलब B में भी तब जाके 3 into 3 9 होने के चांसेस है ना। अच्छा और सेट B में क्या एलिमेंट्स होंगे? ऑब्वियसली 1 2 and 3, राइट। सो बेसिकली हमको क्या करना था कि ये जो सबसेट दे रखा है उसमें ना वी हैड टू एनालाइज दी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स। उससे डायरेक्टली पता चल गया कि आपका जो A है इज क्लियरली A, B, C, और सेट B इज क्लियरली 1, 2, अच्छा सो व्हाट आर ऑल द मिसिंग ऑर्डर्ड पेयर्स? अच्छा अब देखते हैं, देखो जनरली कंसीडर A, 1, उसके बाद A, 2, उसके बाद A, 3 मिसिंग है, राइट। अच्छा सो द मिसिंग वन वुड बी A, 3, एक ये होगा, एंड नेक्स्ट वुड बी B, 1 है क्या यहाँ? ये भी मिसिंग, B, 2 ये भी मिसिंग है, B, 3 है, अच्छा C, 1 मिसिंग, C, 2
Correct. So these are all you are missing ordered pairs. अच्छा, so ये सब मिक्स करेंगे, I mean ये सब इनको क्लब करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आना चाहिए. Are we getting 9 elements? Yes. 4 and 5 है 9 elements. ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. अच्छा, अगर ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी पॉसिबल है, ऑर्डर्ड क्वाड्रुपलेट भी पॉसिबल है. जैसे कि अगर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जैसे ऐसे डिफाइन करेंगे नोट के जिसमें जिस लगता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग 3 सेट्स. और ना कभी बार ये भी हो सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऑन द सेम सेट. There is a possibility A cross A, है ना, if Cartesian product is from A to A itself, ये भी possible है. Sometimes A to A is also possible, right? अच्छा, तो पहले ना वो डिफाइन कर देते हैं कि अगर Cartesian product होता A cross A, इसका मतलब क्या होगा? It's still ordered by A comma B. It's still where A and B both belong to set, है ना. तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट भी सेट A का ही होगा और सेकंड एलिमेंट भी सेट A का ही होगा, है ना. राइट. अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross A is simply n square. Can you say that? Provided number of elements in A is, can you say that? When a Cartesian product doesn't have to be defined on 2 distinct sets, it may be defined on the same set itself, right? What about Cartesian product of 3 sets? जैसे कि A cross B cross C, है ना. तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया. अब इट इज समथिंग लाइक A comma B comma C, where A belongs to A, B belongs to B, and C belongs to, as simple as that. If it is given कि n of A is n, n of B is n, and n of C is equal to say P, right? अगर मैंने पूछा कि n of A cross B cross C में कितने एलिमेंट्स होंगे, इजी टू गेस. m n p, right? m into n into p. Pretty obvious, right? Right? So that's it. That is your basically Cartesian products. ठीक है, तो इस पे बस इतना सफिशिएंट. ओके, अब स्टार्ट करें रिलेशन. राइट, एक्सप्लेन कि व्हाट इज अ रिलेशन. जैसे कि यू नो लुक एट द टर्म इटसेल्फ, रिलेशन में कुछ ना कुछ यू नो when you talk about relation we consider 2 different things, या 2 different persons, या 2 different objects, is it? जैसे कि say if you consider myself, है ना, and you guys, right? What is relation between us? The teacher and students, is it? अच्छा, and similarly if you consider you know Virat Kohli and Ravi Shastri, वो you know what's relation between them? Coach, player and coach relation, isn't it? So if you consider you know our prime minister, right, and myself, what's relation between us? Prime minister and citizen, isn't it? So basically क्या है कि whenever you consider 2 elements or objects or person, you know there is one or the other relation between them. अगर कोई relation ही नहीं है तो अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे, right? अच्छा, अगर वो है तो क्या relation है, ऐसे सोचेंगे अपन, है ना. अच्छा, तो obviously relation is comparison between 2 elements or is the link between 2 elements. 2 elements can be of the same set, or maybe 2 elements could be one element from the one set and another element can be another set. उसका मतलब definitely relation is defined on Cartesian product of 2 sets. Again you know 2 non-empty sets. Yeah, it may be defined on the same set also, है ना, क्योंकि देखो A cross A भी possible है,
isn't it? अच्छा, तो पहले अपन लेट्स राइट वन और टू पॉइंट्स, उसके बाद उस पे अपन एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑफ कोर्स अपन लिखना होगा रिलेशंस या रिलेशन. First point, right? A relation is subset of A cross B. Now we really need to understand this, isn't it? जैसे कि दो सेट्स है A और B, उनके बीच में एलिमेंट्स के बीच में we are trying to find a relation. और रिलेशन कुछ भी हो सकता है, राइट? अपन कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. Now when I say कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने डिपेंड अपॉन एन एग्जांपल, say for example, say we have set A में ऐसे एलिमेंट्स है 1, 2 and set B में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 and so on से लेकर 10, correct? So we have these elements, right? अब देखो say मैंने बोला कि रिलेशन में है 1, 1 सॉरी एंड 2, 4. ऐसे एक काम करूंगा मैं, या एक और एलिमेंट कंसीडर करूंगा 3. तो यहाँ मैंने कंसीडर किया 3, 9. तो शायद से आपको रिलेशन समझ में आ गया कि हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. आप क्या समझ में? जैसे कि अगर आपको ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है, ऐसे है. अच्छा, अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म के लिखना है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B, of course where A belongs to set A and B belongs to set B, such that या आप such that यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ कॉमा लिख सकते हो, है ना? such that B is equal to A square, isn't it? And रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स है where the elements are related by this particular relation where B is equal to A square, isn't it? ये नंबर इसका स्क्वायर है, ये नंबर इसका स्क्वायर है और ये नंबर भी इसका स्क्वायर है. अगर मान लो सेट A में एक और एलिमेंट इंक्लूड किया हमने 4, तो ये 4, 16 ऑर्डर्ड पेयर होगा क्या? Will there be 4, 16 ordered pair here? Yes. कि नो? नो. अब देखो यहाँ 4, 16 होने के लिए सेकेंड एलिमेंट 16 जो है वो आपका सेट B में होना चाहिए, लेकिन सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 10 तक है, isn't it? So we need to be very careful here. So we are trying to link elements of A with elements of B. With what relation? B is equal to A square. Right? अच्छा, यही नहीं, आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. This could have been B is equal to A plus 1, B is equal to A, ऐसे भी हो सकता है ना? अच्छा, so you know depending upon, जैसे कि अच्छा अगर मैंने पूछा कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं in this case, isn't it? 4 into 10, 40. ये 40 एलिमेंट्स में से हो सकता है कि रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आ गए, मैंने ऐसे रिलेशन में डिफाइन किया, या मैंने ऐसे रिलेशन डिफाइन किया तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, जैसे कि मैंने ऐसे डिफाइन किया B is equal to 100 टाइम्स है. अगर मैंने ऐसे डिफाइन किया तो कोई एलिमेंट पॉसिबल हो गया या ऑर्डर्ड पेयर? नहीं, मैंने एंटी रिलेशन बोल सकते हैं इसको. या मैंने ऐसे डिफाइन किया कि देखो मैंने सिर्फ ऐसे डिफाइन किया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. उसका मतलब इसमें सारे आ गए, isn't it? A, B such that A belongs to A and B belongs to B. ये डेफिनेशन किसका है? A क्रॉस B का है. उसका मतलब A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आ गए रिलेशन में, क्योंकि कुछ भी चलेगा, है ना? मैंने डिफाइन किया कुछ भी चलेगा, मैंने सारे आ गए इसमें. अच्छा, और हो सकता है एंटी रिलेशन भी हो सकता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए A क्रॉस B के, या कुछ हो सकता है. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन जो है between two sets A and B, it is always a subset of A cross B. अच्छा, वो सबसेट का मतलब उसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, I mean we don't know, it all depends upon your condition, है ना? तो पहली बात ये है कि आपका जो रिलेशन है वो हमेशा A cross B का सबसेट होता है ना? Now we formally define
रिलेशन है ना, अपन वर्बल फॉर्म में डिफाइन करेंगे रिलेशन को. ओके, सो राइट डाउन. If A and B are two non-empty subsets, if A and B are two non-empty subsets, then relation gives us the rule. Relation gives the rule I'm trying to set, then relation gives the rule in a way elements of set A, in a way elements of set A are associated, in a way elements of set A are associated with elements of set B. So relation gives us a rule या condition या it could be anything, है ना, जो भी condition है which gives us, which establishes relation between the elements of set A and elements of set B. उसका मतलब वही ordered pair ही बनेगा A, B. अगर वो ordered pair ही बन रहे कि वो ordered pair पक्का किसमें से होना चाहिए, A cross B में से. That's exactly why relation is any subset of A cross B. अच्छा, मैंने said any subset of A cross B कि A cross B के कितने subsets possible है. अच्छा, तो पहली बात ये है कि we need to go back to sets again now. जैसे कि अगर किसी सेट में n elements हैं, तो total number of subsets possible are 2 raised to n. करेक्ट. अच्छा, यहाँ मुझे सबसेट्स किसके निकालना है, A cross B के. I want to find number of subsets of A cross B. तो मुझे ढूंढना है कि A cross B में कितने एलिमेंट्स हैं. एंड रिमेंबर A cross B का एलिमेंट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर है ना. अच्छा, तो अपन जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A are n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B are n, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A cross B are mn, n into n. अच्छा, तो A cross B में mn ऑर्डर्ड पेयर्स है. अच्छा, तो ना A cross B के कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, 2 raised to n पक्का, श्योर. तो ना एक पॉइंट अपने को ऐड करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A cross B are 2 raised to n, isn't it? Correct. अच्छा, therefore can I say कि number of relations from A to B are also 2 raised to mn. अच्छा, is it? I mean, are you sure about this? क्योंकि कितने सबसेट्स हैं, 2 raised to mn सबसेट्स है, उनमें से कोई भी सबसेट हो सकता है अपना रिलेशन. तो जितने सबसेट्स हैं उतने रिलेशन. उनमें से देखो एक्सट्रीम वाले केसेस, एंटी रिलेशन, जैसे कि A क्रॉस, जैसे कि एक एम्प्टी वाला भी अपना रिलेशन हो सकता है. जैसे कि A क्रॉस B का सबसेट में एक एम्प्टी वाला सबसेट भी काउंटेड है यहाँ. रिमेंबर 2 raised to mn में, रिमेंबर टोटल सबसेट्स में द फर्स्ट वन इज ऑलवेज एम्प्टी एंड द लास्ट वन इज ऑलवेज द सेट इटसेल्फ. रिमेंबर इम्प्रॉपर सबसेट. अच्छा, तो ना टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B में एक एम्प्टी वाला भी है और एक टोटल पूरा सबसेट भी आ गया है ना. तो इसमें भी ना एक्सट्रीम केसेस कौन से हैं, एक एम्प्टी रिलेशन और दो एक और रिलेशन है जिसमें पूरा A क्रॉस B आ गया, यानी सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए उसमें. तो उसके बाद बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, है ना, वो अपन डिफाइन करेंगे कहीं में. ठीक है. अच्छा, नाउ अब देखो, there is another way of defining A cross B in roster form. Okay, I said, let's see. A relation from A to B where
A belongs to A and B belongs to B, right, is defined as A comma B such that, of course, A belongs to A and B belongs to B and A are B. The relation from A to B, where A belongs to A, B belongs to B, is set of all ordered pairs where A belongs to A and B belongs to B. And you see here A relation B. This is very interesting. माने ये जो relation है, the rule या the condition will be given to us. तो जो condition से ये दोनों related है, वो वाला condition will be mentioned in the question itself, right? अच्छा, you know another way of looking at it कि A relation B, माने how is A related to B? Sometimes you know जैसे कि इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा स्क्वायर वाला है ना, फर्स्ट केस में हमने कंसीडर किया था 1 2 3 और सेकंड वाला इसमें 1 से लेकर 10 तक है ना। अच्छा, उसमें देखो 1 was related by 1 was related to 1 isn't it, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर इज 1। अच्छा, और दूसरा क्या था, 2 is related to 4 isn't it, और तीसरा 3 is related to 9 isn't it। अच्छा, अब देखो 1 was not related to 2 है ना। अच्छा, तो ये 1 is not related to 2 under this particular rule isn't it। So A is related to B and A is not related to B है ना। So ये A R dash B जो होता है, this is where we say कि A is not related to B है ना। अच्छा, anyway it's not that important, बस ये अपना नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। Okay, so what have we done so far? कि